लिंक भेज दीजिएगा सर 10 मिनट में। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। Shall we start with the lesson? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. आप बोल रहे हो मॉर्निंग मैम। सर से डांट खाने के बाद। ओके, गुड मॉर्निंग। Let us start with the class. Okay, commercial farming. Today we will start with the topic commercial farming. It is part of the chapter lesson 4 of geography agriculture. Okay, we were doing the different types of farming and we have studied intensive subsistence farming, primitive farming, okay, and nomadic herding. Now today we will try to cover the topic commercial farming. As far as commercial farming is concerned, we know that this type of farming takes place for sell in the market. Okay, either the crops are grown or the animals are reared. Both these activities are taking place for sell in the market, and the motive is to earn some money, earn some profit. Okay, now as far as commercial farming is concerned, it is further we see that commercial farming is of two types. In your book, okay, it is mentioned that commercial farming uh, includes grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. But okay, as far as I see, okay, commercial farming is of two types. It is of two types. Okay, the first one is commercial. ओके, ग्रेन फार्मिंग, ठीक है ना। पहला वाला जो है वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें अनाज उगाया जाता है, ठीक है ना। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नाउ सी व्हाट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ओके, it is also known as extensive agriculture as the crops are grown on big farms of several hundred hectares. Okay, तो ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है इसका दूसरा नाम है it is also known as extensive agriculture. Okay, तो इसको extensive agriculture भी कहा जाता है since crops are grown on large farms, ठीक है ना। बड़े बड़े जो हैं फार्म्स में जो है फसल उगाए जाते हैं, इसीलिए इसको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नाउ दिस टाइप ऑफ cultivation, this type of okay grain farming, it takes place in the prairies of United States. प्रेरीज को और क्या कहा जाता है? हाँ, प्रेरीज को और क्या कहा जाता है विश्व का? एनीबॉडी? हाँ, नो वन। यहाँ पे किस चीज की जो है खेती सबसे ज्यादा होती है? What kind of cultivation takes place in the prairies of the United States? 7 का पढ़िए, 8 में भूलिए आप लोग। ओके, इट इज नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि ओके द प्रेरीज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, ओके ग्रासलैंड्स, इनको ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। विच इज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, शुगर बॉल किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा चीनी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है शुगर की? It seems as if I have become deaf and you people have become dumb. किसी के मुंह में जुबान नहीं है, अगर है भी तो मैं सुन नहीं पा रही, लग रहा है ऐसे हो गया। क्यूबा। Yes, it is Cuba. Okay, Cuba is known as the okay sugar ball of the world. Okay, now see as far as this prairies are concerned, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है आधुनिक तरीके जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, सारे जो as far as the cultivation is concerned, okay, modern means of agriculture are applied.
modern means of agriculture are applied. Okay. Now tell me somebody, what is the difference between substensive farming and commercial farming? Substensive farming और commercial farming में खास अंतर क्या है? What is the basic difference? अर्पिता, अनुप्रेक्षा, अनप्रेक्षा, अनम्यूट करो खुद को, आंसर बताओ इसका. What is the difference between commercial farming and subsistence farming? महावीर, जुड़े हो आप? Nobody. मुझे तो लग रहा है ना, मुझे खाली this is done बोलो अर्पिता. when this is done to meet the needs of the farmer family. Which और one? मैम कमर्शियल Which one? मैम सबस्टेंस हाँ, तो ऐसे कर, इस शुरुआत कैसे करते हैं? Subsistence farming is okay undertaken to meet the needs of the farmers family and its and their members. ठीक है ना? And commercial farming? yes ma'am. बोलो commercial farming. Ma'am, commercial it is done by farming the is the production of cash crops, sir. उसको बोल लेने दो अर्पिता को. बोलो बेटा. क्या कह रहे हो? ma'am it is done by the machine. It is done for sale ma'am बेटा. commercial farming is done with नहीं, मशीन तो हम, वो तो दूसरा अंतर हो गया. ठीक है ना? जब हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे, जब हम कहेंगे ऑल द वर्क इज डन बाय द फार्मर्स फैमिली, ओके, तब ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. और यहाँ पे जो है कमर्शियल में मशीन का प्रयोग होता है. पहला जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे एक जो है फार्मर की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है और दूसरा जो है बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, चाहे वो जानवरों को पालना हो या फिर खेती करना हो. ठीक है ना? So in commercial farming, the farming takes place for sell in the market. Thank you. Okay. Ayush. देखो. Ayush, you are disturbing. Now see children, mixed farming. No, the other one, that is livestock ranching. ठीक है ना? कमर्शियल फार्मिंग दो प्रकार का होता है. दूसरा है लाइवस्टॉक रैंचिंग. ठीक है ना? जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग जो है, ओके, क्रॉप्स को उगाया जाता है और जानवरों को रियर किया जाता है, दोनों. ओके, ठीक है ना? तो इसमें जो दूसरा टाइप है वो है लाइवस्टॉक रैंचिंग. नाउ व्हाट इज लाइवस्टॉक रैंचिंग? एज फार एज लाइवस्टॉक रैंचिंग इज कंसर्न, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो जगह है वहां पे बड़े बड़े ranches जो है डेवलप किए जाते हैं, बिग estates. ओके, एंड these estates are called ranches. Who maintains the ranches? Can you name the person who, the strong and sturdy men who maintain the ranches? उनको क्या कहा जाता है जो ranches में जानवरों की देखभाल करते हैं, स्पेशली अर्जेंटीना में? What are they called? Cattleman. हाँ, अदिति, आप बोल रहे हो कुछ? Cattleman. बोलो. Cattleman. ना बेटा, काउबॉय कहा जाता है. They are called the cowboys. Okay. So what we see in this, okay, we see the crops are raised. Okay, crops are raised and animals are reared. And animals are reared. ठीक है ना? Animals are reared on ranches. ठीक है ना? Big estates. जो बड़े बड़े जो estates होते हैं, ओके, उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो है काउबॉयज को रखा जाता है. ये काउबॉयज जो है स्पेशलाइज, ये लोग जो है ट्रेंड होते हैं. ठीक है ना? These people, they are trained. The lower part is not visible. Okay, so see,
The crops are raised and animals are reared on big estates called ranches. And these ranches are, okay, these ranches are taken care of by the cowboys. ये जो cowboys होते हैं ना, जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं. Okay. Now this type of farming takes place where? It takes place in North America, South America and Australia. ओके यहाँ पे अर्जेंटीना का जिक्र नहीं किया गया है. अर्जेंटीना में भी इस प्रकार की जो है, ठीक है ना, खेती होती है. नीचे रियड के बाद क्या लिखी है? ऑन बिग एस्टेट्स, ON BIG, बिग ESTATES, एस्टेट्स कॉल्ड ranches. ठीक है ना, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ. On big estates called ranches. हो गया? These ranches, Yes, ma'am. okay, these ranches are taken care, okay, by sturdy men, okay, ठीक है ना, called cowboys. ठीक है ना? National anthem. Stand, beta. Okay. You people must be wanting to come to school. Let's see when the school reopens. Now see children, okay, yesterday we studied about shifting cultivation, okay, और shifting cultivation को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है. Okay, ठीक है ना? I will send you the content, in that you can go through. अभी मैं लिखूंगी तो time waste होगा. Now let us move towards mixed farming. What is mixed farming? What is mixed farming? Anybody? What is mixed farming? Huh? And in mixed farming, the land is used for growing food and fodder crop and rearing livestock. हाँ, the land is used for growing, okay, ठीक है ना, crops, ठीक है, फसल उगाया जाता है, fodder, जानवरों के लिए चारा, okay, ठीक है ना, it is used for growing crops, okay, fodder and rearing livestock, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो है जानवरों को भी पाला जाता है. तो एक साथ जो है 2 से 3 काम इसमें किए जाते हैं. ओके, ठीक है ना, एक के बाद जो है, एक के साथ जो है 2-3 काम इसमें किए जाते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. ओके, द लाइवस्टॉक एंड कमर्शियल आर कैरिड आउट इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज फ्रूट कल्टिवेशन. ओके, सो वी सी फ्रूट कल्टिवेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. तो इसमें जो है ओके, फलों को भी उगाया जाता है. फ्रूट कल्टीवेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भूमि है वो, ठीक है ना, जो लैंड है वो कभी खाली नहीं रहता है. लैंड जो है वो कभी खाली नहीं रहता है. ओके, एंड चिल्ड्रन, आपकी हाफ ईयरली का नोटिफिकेशन आपका आ ही गया है, आपको पता है. काइंडली बेटा अपनी नोटबुक्स जो है मेंटेन कर लीजिए, ठीक है ना. अपनी नोटबुक्स हाफ ईयरली पोर्शन में बता चुकी हूँ महावीर, क्लास में मैं बता चुकी हूँ. हिस्ट्री लेसन 1 to 6, ओके, सिविक्स लेसन 1 to 5 एंड ज्योग्राफी लेसन 1 to 3. ये आपका हाफ ईयरली पोर्शन है, ठीक है ना. ओके, लगभग 14 चैप्टर्स हैं, लगभग 14 चैप्टर्स है. तो बेटा रिवीजन शुरू कर दीजिए. अभी तक आप लोग मल्टीपल चॉइस दे रहे थे, लेकिन अब आपको स्कूल में आके टेस्ट देना है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के जो है तैयार रहने चाहिए. ग्लोसरी हो गया, ओके, अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ज्योग्राफी में आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें ब्लू में दी गई हैं, बहुत सारी चीजें ब्लैक में हाईलाइटेड की गई हैं. तो इन सारी चीजों को आप लोग आपको देखना होगा, जो बॉक्सेस में दिए गए हैं, जो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, गो थ्रू दैट. ओके, इंटरनल एक्सटर्नल, whenever I prepare a paper, मेरा कोशिश यही रहता है कि अंदर से मैं बहुत कुछ दूं बच्चों को, ठीक है ना. वो खाली एक्सरसाइजेस देने से काम नहीं चलेगा. आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है ये आपको पता होना चाहिए. यस, फिर तो सिलेबस बता सकती हैं मैम, फिर तो बता दीजिए क्या है. एवरी डे आई हैव टू टेल बेटा. हाँ, रोज मुझे बताना होगा. हिस्ट्री लेसन बताइए एक बार लास्ट टाइम.
lesson 1 to 6, okay, civics lesson 1 to 5 and geography. चल लिख लो आप भी, यू आर न्यू, ओके, आप भी लिख लीजिए लेसन 1 to 3, ठीक है ना। अभिषेक बहुत बदमाश है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि अभी देखो उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसने अपने हाफ ईयरली पोर्शंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई एम गोइंग टू चेक हिज नोटबुक टुमारो। टुमारो आई विल टेक हिज नोटबुक, आई विल टेक द नोटबुक ऑफ पीयूष त्रिपाठी। मैम स्कूल कब खुलेगा? स्कूल जब मैम एक बार मैम चैप्टर्स वापस एक बार और भेज दीजिए मैम, ओपन नहीं हो रहे हैं। हाँ बेटा भेज देंगे, मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई है, इसकी वजह से मैं भेज नहीं पा रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू रिटर्न। उनका नया मोबाइल है वीवो का, तो उससे मैं भेज दूंगी आपको। गिव मी सम टाइम, 1-2 दिन मुझे समय दीजिए, सारे चैप्टर्स आपको जो है पीडीएफ में मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, now see children, as far as mixed farming is concerned, we see that in mixed farming the land is used for growing food, okay, that is crops, fodder and also rearing livestock, okay. It is practiced where? It is practiced in Europe. इस प्रकार की खेती जो है यूरोप में की जाती है, ठीक है ना। ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ओके। एंड यू नो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? व्हाट इज हॉर्टिकल्चर पीयूष त्रिपाठी? हाँ, यस चिल्ड्रन टेल मी। हाँ बोलो। growing vegetables, flowers and fruit commercial use. Yes, growing vegetables and flowers, okay, sorry, flowers and fruits, okay, for, ठीक है ना, फॉर सेल इन द मार्केट, कमर्शियल। हाँ, कमर्शियल मतलब सेल इन द मार्केट, ओके। हु आर द फ्लोरिस्ट? कैन यू टेल मी फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं? FLORIST, फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं? फ्लोरिस्ट, हाँ, कुछ बच्चे समय लेते हैं, तुरंत गूगल पे सर्च करके बताते हैं। क्लास 7 में बहुत सारे गूगल सर और गूगल मैडम है। Who is a florist? हाँ, जो लोग फूल बेचते हैं, a person who sells flower, a person who sells flower is called a florist. जनरल नॉलेज एकदम बैठ गया आप लोगों का घर पे रहने की वजह से, ठीक है ना। आपका जनरल नॉलेज आपको पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना, और आप खुद भी प्रयास नहीं कर रहे हो कि कुछ जनरल नॉलेज। चलो, तो जब क्लास हो रहा है, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज का तैयार रखें और टीचर से पूछे। अगर टीचर तुरंत नहीं बताएंगे तो अगले दिन तो कम से कम प्रयास करेंगे बताने का। एक बच्चा एफर्ट करता है तो सारे बच्चों को उसको लाभ मिलता है। एवरी डे 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। इन दैट वे यू विल बी, आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ेगी। Now see children, the other one is plantation. Have a look. Plantation are a type of commercial farming. मिक्स फार्मिंग बता दीजिए एक बार और। हाँ बेटा, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में देखो, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स फार्मिंग में जो है फसल के साथ साथ जो है जानवरों को भी पाला जाता है, और ठीक है ना, लैंड को जो है वेरियस एक्टिविटीज के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है मिक्स फार्मिंग में। इन मिक्स फार्मिंग व्हाट वी डू? इन मिक्स फार्मिंग वी यूज द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वी आर यूजिंग द लैंड फॉर ग्रोइंग फॉडर फॉर द एनिमल्स। जानवरों के चारे के लिए जो है हम जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, ओके, खाली समय में जो है उस पे हम फल भी लगा लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे खेतों की जो मेढ़ी होती है, जो बाउंड्री होता है, वहां पे आप देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, फलों के पेड़। हाँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम क्या करते हैं, हम लोग जानवरों को भी पालते हैं। तो एक साथ आप बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हैं। इस प्रकार की खेती को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। नाउ सी व्हाट इज प्लांटेशन? ओके, प्लांटेशन is a type of commercial farming where single crop of tea, okay, single crop is grown, ठीक है ना। It is a type of farming, it is a type of farming in which a single crop, एक ही फसल जो है उगाया जाता है, ठीक है ना।
single crop is grown, okay, on an extensive scale, विशाल स्तर पे, ठीक है ना। विशाल स्तर पे जब हम किसी एक फसल को उगाते हैं तो उसे हम प्लांटेशंस कहते हैं। अब प्लांटेशंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके टी प्लांटेशंस, ठीक है ना। अब चाय की जो खेती होती है आप देख रहे हैं कि, ठीक है ना, यू कैन सी एग्जाम्पल्स टी, कॉफी, देन पाइनएप्पल। एक एक करके मैं पूछूंगी कहाँ पे कौन से जो है फसल उगाए जाते हैं। पाइनएप्पल, देन यू हैव कैश्यू नट्स, काजू, okay, banana, okay, and what else other than this? Okay, tea, coffee, pineapple, have a look, sugarcane, rubber, cotton, etc. कॉटन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो एक ही फसल को जो है विशाल स्तर पे इस तरह उगाया जाता है। अगर आप चाय बागान को देखेंगे, ठीक है ना, आप अगर जाएंगे, हर साल मैं बच्चों को बताती हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा चाय बागान है जहाँ की चाय पत्ती जो है विश्व में सबसे महंगी बिकी जाती है। सबसे महंगी जो है यहाँ की चाय पत्ती बेची जाती है। अब प्रेजेंटली उसका प्राइस क्या है, बट टिल लास्ट ईयर द प्राइस वाज 50,000 पर केजी। 1 केजी चाय की कीमत जो है 50,000 है यूरोपियन मार्केट में, ओके, ठीक है ना। हमारी करेंसी में, भारतीय मुद्रा में जो है उसकी कीमत जो है 50,000 रुपए है। एंड द नेम ऑफ द टी गार्डन इज मकाईबाड़ी, मकाईबाड़ी टी स्टेट, ओके। मकाईबाड़ी टी स्टेट is a tea state where tea is grown and the tea is so special कि उसकी कीमत जो है 50,000 रुपए है, ओके, अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो देखो ये जो चाय है, चाय के जो पौधे होते हैं, आप देख रहे हैं कि चाय के जो प्लांटेशंस होते हैं उनको वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे पानी का स्रोत हो। आसपास में जो है पानी के जो स्रोत होते हैं वहीं पे इनकी जो है खेती होता है। हाँ, का भी खेती होता है। मैं आवाज नहीं आ रही क्लियर, बोलो। रबर का भी खेती होता है। किस चीज की खेती कह रहे हो, चाय की? रबर, हाँ, रबर, ठीक है ना। रबर का कैसे होता है, देखो, ओके, जो रबर प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो स्टेम होते हैं, ये जो उनके स्टेम होते हैं ना, इसमें जो है कट कर दिया जाता है। इसमें जो है शार्प जो है हथियार से कट कर दिया जाता है और यहाँ पे घड़े जैसे जो है लटका दिए जाते हैं। अब इन घड़ों में जो है लैटेक्स जो है वो चू चू के गिरता है, ठीक है ना। जो दूध जैसा व्हाइट कलर का जो है जूस जैसा जो है वो गिरता है इसमें, इन घड़ों में, और इन घड़ों को जो है ले जाके फिर उनको प्रोसेस करके जो है रबर में कन्वर्ट किया जाता है। Okay, if you go through the rubber plantations, you will see that this is इस तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है। आपने जो है आपके क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा टोडी मेकर्स। डू यू रिमेम्बर द टोडी मेकर्स? हु आर टोडी मेकर्स? हु आर टोडी मेकर्स? टोडी मेकर्स किसे कहते हैं? हाँ, टोडी मेकर्स के बारे में आपने पढ़ा है? हाँ, ताड़ी के पेड़ से जो ताड़ लेते हैं, जो ताड़ी निकालते हैं ना, नशीला ड्रिंक होता है। इट इज द ड्रिंक दैट इज प्रिपेयर्ड। हाँ, ठीक है ना, दैट इज डेट नहीं होता है बेटा, पाम होता है। ताड़ी को पाम कहा जाता है, ठीक है ना। तो पाम ट्रीज जो होते हैं ना, पाम ट्रीज से जो जूस निकाल के और उसको जो है प्रोसेस करके आपको देते हैं। कच्चा भी पिया जाता है, कच्चा जो पीते हैं उनको ज्यादा नशा होता है। तो दीज पीपल हु प्रोसेस द जूस, ठीक है ना, दीज पीपल दे आर कॉल्ड द टोडी मेकर्स। हाँ, ठीक है। सो वी सी एज फार एज द टी प्लांटेशन इज कंसर्न ऑन द हिल स्लोप्स, आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों में टी प्लांटेशंस होते हैं। कॉफी, साउथ इंडिया,
दक्षिण भारत में जो है कॉफी प्लांटेशन आप देख सकते हो। एज फार एज पाइनएप्पल इज कंसर्न, पाइनएप्पल की खेती कहाँ होती है बताओ? वेयर फ्रॉम यू गेट पाइनएप्पल? हाँ ना बेटा, बिधाननगर, ठीक है ना, बिधाननगर ये जगह है बंगाल में। ओके, सबसे ज्यादा पाइनएप्पल की खेती वहां पे होती है। हाँ, बिधाननगर जो है बंगाल में है। ओके, इट इज इन नॉर्थ बंगाल, ठीक है। नॉर्थ बंगाल में वहां पे जो पाइनएप्पल्स जो होते हैं वो एकदम येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं। एक पाइनएप्पल आप जो है उसका एक पीस आप खा लेंगे, आपका जो है, ठीक है ना, जो है दिन की शुरुआत अच्छी होगी। इधर जो हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो पाइनएप्पल जो पाया जाता है ग्रीन ग्रीन कलर का, इट इज नॉट एट ऑल टेस्टी। द बेस्ट पाइनएप्पल्स यू गेट फ्रॉम बिधाननगर। कैश्यू नट्स अगेन इन द साउथ, ओके, अगेन इन द साउथ, इसके लिए वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। बनाना कहाँ पे? हमारे देश में। ओके, केले की प्लांटेशंस कहाँ पे हैं? केरला में। हाजीपुर भूल गए? हाजीपुर भूल गए? हाजीपुर बिहार में भूल गए? हाँ, ठीक है ना। ओके, कॉटन महाराष्ट्र एंड गुजरात, कॉटन महाराष्ट्र एंड गुजरात, रबड़ अगेन साउथ, शुगर केन उत्तर भारत और पंजाब, ठीक है ना। प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी जो है गन्ने की खेती होती है। ओके, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम शुगर केन? शुगर केन से आपको क्या मिलता है जो आगे चल के जो है? हाँ, शुगर केन, हाँ गुड़, चीनी, ग्रेट। शुगर केन में क्या होता है जो मिठास प्रदान करता है गुड़ को और चीनी को? What is there in sugarcane which provides sweetness to jaggery and sugar? ऐसा कुछ होता है उसमें? हाँ, it is there. Ask your science teacher. Now let us move towards the major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. Now what are the major crops? Have a look. As far as the major crops are concerned, we divide the major crops into how many categories? Major crops of our country. मैंने पिछली क्लास में बताया था। राइस। हाँ, अटेंडेंस का लिंक भेजेंगे अजीत सर, देखो नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री? मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया? राइस, मेज, मिलेट्स। पहले कैटेगराइज करते हैं बेटा पहले कैटेगराइज करते हैं। फूड क्रॉप्स, ठीक है ना, इनको सीरियल्स भी कहा जाता है। ओके, जो फूड क्रॉप्स होते हैं इनको हम सीरियल्स भी कह सकते हैं। सीरियल्स में आते हैं आपके व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस नहीं आएंगे, मिलेट्स, मेज एंड मिलेट्स। ओके, ठीक है ना, मेज एंड मिलेट्स। नाउ व्हाट आर मिलेट्स? They are also known as coarse grain. Yes, millets are also known as coarse grains. ठीक है ना, इनको coarse grains भी कहा जाता है। Okay, now the other one is beverage crops. अब आपके beverage crops किसे कहते हैं हम लोग? This is the second category. टी और कॉफी। Yes, it is tea and coffee. ठीक है ना, tea and coffee are called beverage crops. Now the other category is फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स कौन से हैं हमारे? जूट और कॉटन। यस, सिल्क और कॉटन। जूट और कॉटन। ओके, कॉटन एंड जूट। ओके, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके क्रॉप्स होंगे उसमें आएंगे आपके ऑयल सीड्स, ठीक है ना, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ठीक है ना, दलहन। ये ऑयल सीड्स जो हो गया तिलहन हो गया, और
है, पल्सेस जो हो गया ये दलहन हो गया, ठीक है ना। तो ऑयल सीड्स में बहुत सारे ऑयल सीड्स आएंगे, सीसमम आएगा आपका, ओके, मस्टर्ड आएगा, ठीक है ना, तिल्ली, ओके, तीसी आएगा, तिल आएगा, ठीक है ना, लेंटिल एंड सीसम, दैट विल आल्सो कम इन ऑयल सीड्स। एंड एज फार एज ऐड करें। किसी ने अपने माइक को जो है अनम्यूट करके रखा है, आदित्य है, ओके। तो देखो पल्सेस में आपके बहुत सारे पल्सेस आएंगे, मूंग की दाल आएगा, अरहर की दाल आएगा, चने की दाल आएगा, ठीक है ना, मसूर की दाल आएंगे, ये सारे जो हैं पल्सेस में आपके आएंगे, okay, all these will come in the category of pulses. Anything which we are leaving out? एक और कैटेगरी होगी, वो कौन सी है? दैट इज द कैश क्रॉप्स, ठीक है ना, जो कैश क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर व्हाट, फॉर सेल, जो कैश क्रॉप्स होते हैं उनको हम उगाते हैं सेल करने के लिए। नाउ लेट अस गो थ्रू, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, आई विल इरेज इट, shall I erase it? जल्दी करो बेटा, ठीक है ना, हो गया, ओके। पल्सेस में आपका ग्राम आएगा, आपका राजमा आएगा, ये सारी चीजें जो है दलहन में आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है आपके दलहन में आ जाते हैं। अब एक एक करके जो है हम लोग सारे फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे पहले, ओके, फूड क्रॉप्स, wheat, rice, maize and millets. Now let us go through it. Okay, the food crops. Have a look children, as per your book. राइस, ठीक है ना? राइस, क्या कह रहे हो? में राइस दिया। यस, ये जो हमारे देश के जो क्रॉप्स हैं इनको स्टेपल क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे डाइट का जो है हिस्सा होते हैं, ओके, दे आर पार्ट ऑफ द डाइट, ओके। Now see, the geographic distribution of crops is controlled by both physical and human conditions. As far as the crops are concerned, the geographic, भूगोलिक, ठीक है ना, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, अब कौन से फसल कहाँ पे होंगे, ठीक है ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो मुख्य कारण क्या है? The geographical distribution of crops is controlled by both, ठीक है ना, physical and human conditions, physical and human conditions। अब हम फिजिकल कंडीशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओके, आप मरुस्थल में, ठीक है ना, रेगिस्तान में जो है आप डेट उगा सकते हैं, आप खजूर उगा सकते हैं रेगिस्तान में जहाँ पे पानी रहता है, नियर द ओएसिस, ओके, जो ओएसिस वाला जो क्षेत्र होता है। Where is your geography book? You don't have? See, for the past 2 days I am teaching geography and every day is coming with civics book. I will complain. वार्डन को कंप्लेन कर दूंगी, कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, your hostel is nearby JP Niketan. How much time do you take to bring your book? Listen children, so what we see as far as the geographical distribution is concerned, it is controlled by physical and human conditions. अब physical इसलिए कहेंगे कि ओके, मान लीजिए कोई क्षेत्र जो है उपजाऊ है, लेकिन हम वहां पे जो है श्रम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम अपनी ओके, वी आर नॉट अप्लाइंग फिजिकल फोर्स एंड नाइदर वी आर अप्लाइंग ओके एनी ह्यूमन लेबर, सो हाउ कैन दैट लैंड बी बेस्ट suited for the cultivation of crops? So in order to cultivate crops, both the physical and the human conditions are required, okay. Now as far as rice, the first one is rice. Have a look. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. Okay, so as far as rice is concerned, सबसे पहली चीज जो है, it grows well in clay, alluvial, okay, clay soil, ठीक है ना, दैट कैन रिटेन वाटर। इसके लिए जो है पानी बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
that can retain water. What is the process of cultivation of paddy? पैडी हम लोग कैसे उगाते हैं? डायरेक्ट जैसे बाकी फसल उगाते हैं वैसे धान की खेती होती है कि कुछ अलग तरीका होता है? विच प्रोसेस? अलग तरीका होता है। कौन सा तरीका? व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? पहले से जोता होता है, फिर से पानी चढ़ाया, हाई टेम्परेचर से कैन वी कॉल इट ट्रांसप्लांटेशन? क्या हम उसे ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं? हाँ, यस मैम, हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं ना। द मेथड दैट इज अप्लाइड फॉर ग्रोइंग पैडी, ओके, धान की खेती के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उसे हम ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं। ओके, ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग खेत तैयार करते हैं, ओके, और खेत तैयार करके जो है उसके बाद हम लोग उसमें बीज बोते हैं। इज द मेथड applied to ओके ग्रो पैडी, ठीक है ना, पैडी धान को कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले फील्ड तैयार किया जाता है, उसको पानी से खूब बढ़िया से जो है भिगो दिया जाता है और उसमें जो है बीजारोपण किया जाता है। ओके, द सीड इज सोन एंड आफ्टर दैट, ओके, कुछ ऊंचाई के जब पौधे उसमें तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन पौधों को निकाला जाता है। ओके, उनके गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जो है मैं देखती हूँ कई बार जो है मैं देखती हूँ कि खेत में वैसे ही छोड़ देते हैं लोग, गड्ढे बना बना के जो है बंचेस बना बना के उसको पानी में ही छोड़ देते हैं लोग। अगले दिन आते हैं लोग और आके उसको जो है फिर वापस से जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। So this is a different process as far as rice is concerned, and rice grows well where there is availability of water. Okay, और हमारे देश में अगर हम राइस की बात करते हैं तो सबसे साल में जो है 2 से 3 फसल जो है, बाकी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि चावल जो धान की जो खेती होती है साल में एक ही फसल उगाए जाते हैं, लेकिन बंगाल का जो क्लाइमेट है वो कुछ इतना बेस्ट सूटेड है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस कि वहां पे साल में 3 फसल उगा सकते हैं लोग। ओके, nearly 3 crops of rice are grown in Bengal because of the climate out there. वहाँ की जलवायु जो है वो 3 प्रकार का नहीं, 3 बार एक ही खेत में एक साल में जो है 3 फसल, ठीक है ना, एक साल में जो है 2 से 3 फसल जो है धान के हो सकते हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो?